Hello everyone. In stages in the formation of company, in there we had learned the promotion stage, incorporation stage, and commencement of business stage. Guys, in promotion stage we had learned how the promoter promote the company. Thereafter, in incorporation stage we had learned after the promoting how the company will get the incorporation certificate from the ROC, and thereafter we need to learn how the company can commence his business means कंपनी अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकती है ओके कैसे उसकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको प्रोसीड कर सकती है आफ्टर दी इनकॉर्पोरेशन with the commencement certificate. Okay, so guys, the public company and the private company which don't have a share capital, जो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के पास शेयर्स कैपिटल नहीं है, they can commence his business means they can start their business activity immediately after getting the incorporation certificate from the ROC. ROC से अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटी बट दोज कंपनी हैव अ शेयर दोज कंपनी हैव अ शेयर्स like public company or private company, they cannot start their business after the incorporation. They have to fulfill or they have to obtain a certificate of commencement of business. समझ में आ रहा है गाइज? मतलब जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के पास शेयर्स नहीं है तो अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर दी गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन इमीजिएटली राइट नाउ दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बट the public company and private company which have share capital or the company which are incorporated after the 2nd November 2018, जो 2 नवंबर 2018 के बाद जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं, दे नीड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट्स. मीन्स जो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल हैं वो, इसके अलावा जो कंपनी 2 नवंबर एंड 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, दैट ऑल कंपनी need to obtain a certificate of commencement to start the business activity. From where they can take the certificate of commencement? So they can obtain the sales certificate of commencement of business from the ROC, that is the registrar of companies. Okay, now guys, you can see there has some steps has given to obtain the certificate of commencement of business. Guys, this is not any kind of stage, this is a just certificate of commencement, how the company will get the certificate of commencement after the incorporation. Okay, certificate. Now guys, the very first filing of the declaration by the director. Guys, the director of the company, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी क्या करेगा? दी फर्स्ट फाइल विद द ROC. वो क्या उसमें एक डिक्लेरेशन क्या करेगा? फाइल करेगा ROC में. इन दैट डिक्लेरेशन हैज़ रिटन देयर, वहाँ पे क्या लिखा रहेगा डिक्लेरेशन में कि जो भी मेरे कंपनी के जो भी मेमोरेंडम में जो मेरी कंपनी का जो मेमोरेंडम हो उसमें जो भी सब्सक्राइबर कंपनी, एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दे विल पेड, क्या करेंगे? दे विल पे द एग्रीड अमाउंट ऑफ द शेयर विच इज़ टेकन बाय देम. मीन्स उन्होंने जो भी शेयर्स परचेस किए लिए हैं वो क्या करेंगे? उनकी वैल्यू को पे करेंगे, वो उसके लिए सहमत है. डायरेक्टर कंपनी का क्या डिक्लेयर करेगा कि एवरी सब्सक्राइबर विच मेंशन इन द मेमोरेंडम दे विल पे द वैल्यू ऑफ द शेयर एग्रीड बाय देम. उनके द्वारा लिया हुआ जो शेयर्स है उनकी वैल्यू वो पे करेंगे. कौन पे करेगा? सब्सक्राइबर, जिन्होंने शेयर परचेस किए हैं. सो दैट डिक्लेरेशन हैज़ गिवन इन दी in the that declaration is given in the that one kind of a document. This is a prescribed form, एक तरह का prescribed form होता है, and which is given by the director to the ROC. और ROC को submit करना पड़ता है. Okay, so a director of company has to file with the ROC. The director of the company has to file with the ROC. ROC को file करेगा a declaration in the prescribed form. एक तरह का declaration रहेगा, एक तरह का वो declaration form रहेगा जो कंपनी के थ्रू इशू होता है. ओके, विद द फीस उसकी समथिंग फीस रहेगी. ओके, द डिक्लेरेशन स्टेट दैट एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम हैज पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर agreed to be taken by them. Yes, in that declaration stated that every subscriber of the memorandum, जो भी memorandum में जो भी mention है subscriber, they will pay the value of the shares agreed टू टेकन बाय देम. मतलब जो उन्होंने एग्री किए शेयर वो परचेज करेंगे उसकी वैल्यू वो पे करेंगे. एंड द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय अ कंपनी.
एंड दैट ऑल द कंटेंट, जो भी कंटेंट है मेमोरेंडम में, ये कंपनी के थ्रू क्या हुए हैं, वेरीफाइड हुए हैं। कंपनी में किसने वेरीफाइड किए हैं, द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का सेक्रेटरी है वो कंपनी सेक्रेटरी। और कौन कर सकता है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। दोज आर प्रैक्टिसिंग इन अ कंपनी। Are you getting right? Whatever the declaration has given in the prescribed form, okay, so that declaration, जो भी declaration, that declaration shall be verified, it means it will be verified by a company secretary or by the chartered accountant or by the cost accountant. Those are practicing in the company, okay. But guys, that declaration form, it will be filed within the 180 days from the date of incorporation of a company. Means when the company will get the incorporation certificate, from that date to the with up to the 180 days, 180 दिन के अंदर ही वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। कहाँ सबमिट होना चाहिए, इन दी आरओसी के ऑफिस में। ओके, नाउ देयर आफ्टर द सेकेंड पॉइंट हैज गिवन द फाइल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। यस, इसके बाद क्या करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी हैज़ टू फाइल द वेरिफिकेशन ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब अपनी कंपनी का जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा उसके वेरिफिकेशन के लिए कंपनी क्या करेगी, आरओसी में सबमिट करेगी। Okay, now third point has given the obtain license or approval from the sectoral regulator. Yes, after that company क्या करेगी, if जो भी कंपनी है अगर वो कोई बैंकिंग बिजनेस से कंडक्ट कर रही है, या फिर इंश्योरेंस बिजनेस से कर रही है, या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे भी जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें अगर उसमें अपने शेयर्स को लिस्टेड करवा रही है, ओके, सो दे नीड अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर। सेक्टर रेगुलेटर कौन होते हैं, आरबीआई और द सेबी। या तो सेबी से क्या करेगी, परमिशन लेगी, रजिस्ट्रेशन लेगी, या फिर आरबीआई से ले सकती है, ओके। सो सच कंपनी मस्ट सबमिट टू आरओसी द अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर। अगर कोई कंपनी है जो किसी बैंकिंग बिजनेस से कंडक्ट कर रही है, या फिर इंश्योरेंस बिजनेस है, या फिर प्रपोज करती है अपने शेयर्स को इन अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, अपने शेयर्स को लिस्ट करवा रही है, ओके, सो दे नीड अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर। सेक्टरल रेगुलेटर कौन होते हैं, दे आर दी आरबीआई और सेबी। इनके थ्रू क्या हो जाना चाहिए, इनका जो अप्रूवल है, ये इनके थ्रू अप्रूवल मिलना चाहिए और वो सबमिट होना चाहिए कहाँ पर, आरओसी में, ओके। नाउ व्हाट इज रिटन से द सर्टेन कंपनी विच प्रपोज टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है या फिर इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती है, अदरवाइज ये इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर ये अपने कोई शेयर्स को क्या कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा रही है, सो दे नीड अ रजिस्ट्रेशन, इन एक तरह का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा फ्रॉम द सेक्टरल रेगुलेटर। सेक्टरल रेगुलेटर मीन्स आरबीआई और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ओके, so they need approval from the that kinds of RBI or SEBI, and thereafter they have to submit, after taking the approval or registration they need to submit to ROC, okay. So thereafter this is the third stage. Thereafter we will get, company will get the commencement certificate. Now fourth point is given, the after filing declaration in prescribed form. Guys, after completing this all procedure और डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आरओसी में, ओके, सो देन आरओसी शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इफ फर्स्ट आरओसी विल सी द ऑल डिक्लेरेशन, आरओसी विल सी द वेरिफिकेशन ऑफ द इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, देन आफ्टर आरओसी विल सी द अप्रूवल ऑफ द सेक्टर रेगुलेटर। ये सारे प्रोसीजर इफ आरओसी आर सेटिस्फाइंग विद द ऑल डॉक्यूमेंट, जो भी कंपनी ने डिक्लेरेशन की है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जो भी फाइल किया है, when the आरओसी उनसे सेटिस्फाइड रहेगी, सारे डॉक्यूमेंट से, सारे फॉर्म से, या फिर जो भी अप्रूवल है, जो भी वेरिफिकेशन है, अगर आरओसी सेटिस्फाइड है, सो आफ्टर डैट आरओसी क्या करेगी, आरओसी देन इशू द, क्या करेगी, इट विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तब आरओसी क्या करेगी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट किसको इशू करेगी, कंपनी को इशू करेगी। अब गाइस देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल कैन नाउ स्टार्ट इज बिजनेस और स्टार्ट कलेक्टिंग और बोरिंग मनी टू अंडरटेक इज बिजनेस एक्टिविटी। यस, पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी होगी, सो इफ दे हैव द शेयर कैपिटल,
ओके, अगर उनके पास शेयर कैपिटल है, सो दे कैन आफ्टर गेटिंग द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। और क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट कलेक्टिंग द फंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेस और आउट एक्सटर्नल सोर्सेस। मीन्स वो फंड कलेक्ट करना मार्केट से शुरू कर सकते हैं। इंटरनल सोर्स से भी, मीन्स दे कैन इशू द शेयर्स, और अदरवाइज दे कैन collect the fund from the external sources, that is the debentures, bond, means they can borrow the fund from the public through issuing the debentures, bonds, public deposits, etc. Okay, so through this kind they can क्या कर सकते हैं, they can start or undertake their business activities. Okay, but guys, if the public company is there, so they have to issue the prospectus to the public. वो क्या करेंगे, पब्लिक कंपनी है तो डेफिनेटली ही विल इशू द प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक में, और देयर आफ्टर पब्लिक फर्स्ट रीड द प्रॉस्पेक्टस इफ द पब्लिक्स आर इंटरेस्टेड विद द कंपनी। अगर कंपनी से इंटरेस्टेड होंगे, अगर उनका इंप्रेशन अच्छा रहेगा कंपनी का, सो देन पब्लिक क्या करेगी, अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी में। ओके, सो लाइक द गाइज प्रॉस्पेक्टस इज एज एनी काइंड ऑफ अ इन्विटेशन, एक तरह का वो इन्विटेशन है फॉर द पब्लिक के लिए, जो पब्लिक आए और कंपनी के शेयर्स परचेस करें। ओके, दैट इज ओनली गिवन दैट द प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन फॉर द पब्लिक टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। मीन्स कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए एक तरह का इन्विटेशन है, किसकी तरफ से, फ्रॉम द कंपनी, किसको, टू द पब्लिक। ओके, नाउ सी व्हाट इज रिटन, राइट, आफ्टर फाइलिंग डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म द आरओसी देन शैल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। yes, when the all the declaration file will be submitted in the आरओसी, जो भी फाइलिंग किया है, जो भी डिक्लेरेशन है, वो सब फाइल होने के बाद एकदम पर्टिकुलर फॉर्मेट में, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, तो आरओसी क्या करेगी, देन आरओसी, इफ आरओसी आर सेटिस्फाइंग विद द ऑल द डॉक्यूमेंट, देन आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एंड प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी having share capital, those have a share capital, they can start their business or start collecting fund through the internal or external means or borrowing money to undertake its business activity। मतलब फंड भी बोरो कर सकती हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। गाइस, हमने पढ़ा था कि दोज हैव नॉट, जिनके पास, दोज नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, वेदर इट इज़ अ पब्लिक, वेदर इट विल अ प्राइवेट कंपनी। बट जिसके पास शेयर कैपिटल वो नहीं स्टार्ट करते थे आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग, दे नीड टू ऑब्टेन द कमेंसमेंट। तो जब कमेंसमेंट मिल जाएगा सर्टिफिकेट, तो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है, वो क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो फंड भी बोरो कर सकते हैं बाय द इंटरनल सोर्सेस और बाय द external sources। and thereafter guys, a public company है, public company can issue the prospectus to the public, a prospectus is an invitation to the public to buy the shares of the company। yes, public company है तो क्या कर सकती हो, वो prospectus इशू करेगी पब्लिक में। ओके, और prospectus क्या है, ये तरह का इन्विटेशन है पब्लिक को टू बाय द शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी के। ओके, नाउ गाइस, टुडे वी हैड completed our third lesson। okay, in next video we will start our fourth chapter। okay, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।